Today we will be doing unit number 22 and 23 of your grammar book, and that will finish our course. Okay. Children, 22 कॉम्प्रिहेंशन है. कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि जो भी आप चैप्टर्स पढ़ते हो वो सारे कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होते हैं. ठीक है. उसमें इंग्लिश में जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच हम लोग यूज़ करते हैं वो सब यूज़ कर रहे होते हैं, एंड उससे हम एक पैराग्राफ बनाते हैं विच कन्वेज सम मीनिंग, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ कॉम्प्रिहेंशन. Okay. Now, this comprehension is not given in the book for the class work. ये आपके लिए दिया होता है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें एक कॉम्प्रिहेंशन को रीड करके उसको आंसर कैसे करना है उसकी. ऑलराइट. सो if any one of you feel like doing this, you can do this. This is not mandatory. That is why I will not do it with all of you. But there are few things that you need to see in these comprehension. ठीक है. We will see this animal sound here, page number 88. Okay. Read this poem and answer the following questions. See, आपको poem read करना है और answer करना है. आज मैं आपको बताती हूँ, एक बार फिर बताती हूँ कि poem कैसे read करते हैं. You have to read very carefully कि क्या मतलब है किस चीज़ का. Okay. I sat for my lunch and a bee came buzzing. Bee came buzzing means bee आई buzz करते हुए. That means bee is making the sound of buzzing. Out in the pond I could hear the frogs croaking. Frogs croaking मतलब frogs क्या करते हैं sound? Croak करते हैं. Correct? The asses were braying and the horses were neighing. Ass मतलब ass का मतलब होता है donkey. Okay? वो braying means उनका आवाज़ निकालने को हम braying कहते हैं. Right? And horses were neighing. Horses का sound क्या होता है? Neigh. N-E-I-G-H. ओके. इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखेंगे तो नेइंग लिखेंगे, इसमें ing प्लस कर देंगे. ठीक है. तो ऐसे हम टेंसेस को यूज़ करते हैं. करेक्ट. नाउ सी रैकेट दे वर ऑल क्रीटिंग. रैकेट मतलब रैकेट इज़ अ इंसेक्ट. आपने देखा होगा, क्रिकेट भी देखा होगा, रैकेट भी देखा होगा. ऐसे पतले पतले विंग्स होते हैं उनके. That is called a racket or a cricket. Okay. Now, the rackets were creating. ठीक है. ये creating नहीं है, ये creating है. When the snakes do hiss, snakes do hiss, and the tigers do growl. Tigers क्या करते हैं? Growl करते हैं. ठीक है. So this poem is basically telling you कि कौन सा animal कौन सा sound बनाता है. Easy to understand. Let's see the next page. When the wolves howl, wolves क्या करते हैं? Howl करते हैं. Through the forest as they prowl. Prowl मतलब walk. Okay. Elephants trump. The monkeys chatter. The elephants, what do? They trumpet. ठीक है. They trumpet. And monkey chatters. What? Now see. Would you like to know what is the matter? We are all so busy with our whispers and shouts. We never know what the animals talk about. That means it is their way of talking and we don't know what do they talk, as we all are busy talking to each other. Now see, अभी हमने पढ़ा कि कौन सा एनिमल कौन सा साउंड करता है. यहाँ पे उसी के बेसिस पे क्वेश्चन दिए हुए हैं. तो चिल्ड्रन, किसी भी कॉम्प्रहेंशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको पढ़ने के लिए बताया गया है तो आपको पूरी अटेंशन के साथ उसको पढ़ना है. एंड अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है इस कॉम्प्रहेंशन के रिगार्डिंग, देन यू शुड बी एबल टू आंसर इट. The answers which you will give will show your attention towards the comprehension. Now let's see. Asses क्या करते हैं? Bray करते हैं. Elephants क्या करते हैं? Trumpet करते हैं. Wolves क्या करते हैं? Howl करते हैं. Frogs क्या करते हैं? Croak करते हैं. Right? Now see, what was the bee doing? Bee was buzzing. Who were growling? The tigers were growling, right? Do we understand what animals say? Why? Now see, the last three lines. Wouldn't you like to know what is the matter? इसका मतलब the poet is saying, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि matter क्या है? We are all so busy with our whispers and shouts. यानी कि हम सब कितने busy हैं अपने whispers and shouting के साथ. Whisper means
to speak very slowly. अब कान में कुछ कहते हैं ना किसी के, that is whispering, okay? And shout means to shout. We never know what animals talk about. लास्ट में वो कहता है exclamation. हमने पढ़ा था इंटरजेक्शंस. अबाउट यहाँ पे इंटरजेक्शन के तरीके से यूज़ किया है. अबाउट के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है चिल्ड्रन, राइट? सो दैट शोज दैट इट इज़ अ सडन portrayal of emotions, that he's sighing basically. Sigh कर रहा है कि oh we do not know what animals are talking about. It is sad. Alright? Now see, this is relating to the question here. Do we understand what animals say? Why? We don't know what animals say because we don't have the same language. That is why we don't understand what do the animals say. Now see, in this poem there are many things given. अभी हमने देखा कि इंटरजेक्शन यूज़ किया है. अभी हम देखेंगे कि प्लूरल कहाँ यूज़ किया है. सी, वुल्व्स, एलिफेंट्स, ये सारा प्लूरल है, करेक्ट? मंकीज. आपको इनका प्लूरल फाइंड करना है. हॉर्स का क्या होता है? हॉर्सेस, करेक्ट? वुल्फ का क्या होता है? वुल्व्स. टाइगर का क्या होता है? टाइगर्स. Simple. So this is how you find out things from your comprehension. Okay. Now see, find synonyms from the passage. Move quietly while hunting. Now see, wolves howl through the forest as they prowl. Prowl means to hunt. Okay, ये देखो hunting का मतलब होता है prowling. So वो synonym हो गया, right? सिनोनिम का क्या मतलब होता है? सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग, करेक्ट? वेरी सॉफ्ट एंड वेरी क्वाइट साउंड. सेकेंड वन, whisper. Whispering is very soft and quiet sound, so the answer is whisper. All right, so that's how you find meanings from your comprehension. Let's see the next one. Okay, चिल्ड्रन, यहाँ पे आपके बुक का फर्स्ट पेज दिया हुआ है एंड यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स हियर. ठीक है, अभी आप देखो हाउ डू यू गेट टू नो. इफ कोई और बुक का दिया होता तो आप कैसे फाइंड आउट करते? दिस इज जनरली द टाइटल ऑफ द बुक. देखो बुक 3 लिखा है, दैट मीन्स इट इज़ फॉर क्लास 3. ओके, यहाँ पे देखो ऑथर लिखा है, टाइटल दिया है ऑथर, उसके नीचे ऑथर का नेम लिखा है. देखो डिज़ाइनर का नेम है, उसके नीचे डिज़ाइनर का नेम दिया है एंड कंपोजर का नेम दिया है, करेक्ट? दिस इज द पब्लिकेशन. ओके, नाउ अभी आप देखोगे फ्रॉम द टाइटल की कौन से सब्जेक्ट का बुक है. इट इज़ फॉर इंग्लिश बुक. ठीक है, अब नाउ लास्ट क्वेश्चन हियर इज दैट क्या ये इम्प्रेसिव है या अट्रैक्टिव है? दिस ऑन योर ओन यू विल राइट. सो आई वॉन्ट यू टू डू दिस फॉर योर होमवर्क. Question number 4 for your homework. No comprehension, only this one for your homework. All right. Now let's see the next unit. Unit number 23. Children, यहाँ पे आपको fill in the blanks करने हैं. It's a very simple thing. ये भी आप homework के लिए करेंगे. Okay. This also you will do for your homework. Now, last thing for today is your paragraph writing. This is also paragraph writing, but इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करके पैराग्राफ बनाना है. इस वाली एक्सरसाइज में ऑन द पेज नंबर 92 आपको खुद से पैराग्राफ लिखना है. राइट, आप फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करेंगे? लेट्स सी. यू विल स्टार्ट रीडिंग. यू विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट कि आपको करना क्या है क्वेश्चन में. ठीक है, जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं चिल्ड्रन, रीड योर क्वेश्चंस वेरी केयरफुली. अगर आप क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो आप आंसर भी गलत ही लिखेंगे और गलत आंसर के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ओके, तो अब हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. हियर इज़ अ रेसिपी फॉर प्रिपेयरिंग अ सैंडविच. रेसिपी का क्या मतलब होता है? स्टेप बाय स्टेप रेसिपी होता है कि पहले आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है खाना बनाने के लिए, करेक्ट? दैट्स कॉल्ड अ रेसिपी. यहाँ पे सैंडविच का रेसिपी दिया है. कंप्लीट इट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स. यहाँ पे जो पिक्चर्स दी हैं चिल्ड्रन, उसकी मदद से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं एंड आपको ये रेसिपी कंप्लीट करनी है सैंडविच की. ओके, नाउ सी, ये क्या है? वेजिटेबल्स है. नाउ कट द वेजिटेबल्स इनटू थिन स्लाइसेस. अप्लाई द, ये क्या है? बटर.
butter on 2 slices of bread. Take one buttered slice and spread dash on the top of butter. ये क्या है? Tomato ketchup. Correct? So you will write tomato ketchup. Add a few slices of dash on that. What is this? Most probably onion. So you will or nahi to this can be anything. This can be meat also. This can be any other vegetable also, correct? Or some pasta also. So you can write whatever you feel like. This is what? Cheese. This is what? Bread. And this is the ready sandwich. So that is how you have to look at the pictures and fill in the blanks. Alright? Next page. Now children, जब आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं so you have to remember a few things in your mind. Let's see the first one here. Sam is telling about his best friend Samrat. Read it carefully and then write about your best friend. Children, यहाँ पे आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताने वाले हैं. रादर यहाँ पे जो सम्राट है ये अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बता रहा है. तो लेट्स सी क्या 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 डिटेल्स देगा वो अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में. ओके, आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट सम्राट इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि फ्रेंड्स तो मेरे बहुत सारे हैं लेकिन सम्राट मेरा बेस्ट फ्रेंड है. ओके, वो कितने साल का है? ही इज़ 8 years old. Okay, I will just zoom it for you all. Okay, ठीक है. He is 8 years old. We study in the same class. उसने आपको ये भी बताया कि वो दोनों सेम क्लास में पढ़ते हैं. Then he is telling you that he is very smart. Samrat is very smart. And he have a fair complexion and black hair. अभी देखो उसने उसके एज के बारे में बताया, ठीक है. देन उसकी क्लास के बारे में बताया. देन उसके अपीयरेंस के बारे में बताया कि वो कैसा दिखता है. अपीयरेंस मीन्स कि वो कैसा दिखता है. करेक्ट. फेयर कॉम्प्लेक्शन है और ब्लैक हेयर है. राइट. ही हैज़ गॉट ब्राउन आइज. उसके ब्राउन आइज के बारे में बताया. उसके आइज के कलर के बारे में बताया. राइट. उसने ये भी बताया दैट ही इज़ अ मॉनिटर ऑफ द क्लास एंड ही इज़ ऑलवेज स्मार्टली ड्रेस्ड. ओके, ही इज़ वेरी पोलाइट. नाउ बेसिकली वो सारे एडजेक्टिव्स बता रहा है उसके बारे में. द कलर ऑफ हिज आई, द क्लास, द एज, his complexion, his hair color, then his intellect, then his dressing way. ये सारे क्या है उसके बारे में? एडजेक्टिव्स हैं. Adjectives are describing words, right? So whenever you write about a person or a place or an animal or a thing, whenever you're describing it, you use describing words. Okay, like all the adjectives. So same you have to do for your best friend. Now the second one. Sorry, the third one. Read this short description of Aditya's grandfather, then write a paragraph about your grandparents. चिल्ड्रन, जैसे सम्राट के बारे में बताया, सम्राट ने अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताया, राइट. वैसे ही आप अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताएंगे. यू विल टेल हिज एज, यू विल टेल व्हाट डू यू लाइक अबाउट हिम, यू विल टेल हाउ डज ही लुक लाइक, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस ही वेयर, व्हाट डज ही लाइक टू डू, व्हाट डज ही लाइक टू ईट, व्हाट डू यू डू विथ हिम, व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट विथ हिम, एंड दैट्स हाउ यू विल राइट योर होल पैराग्राफ. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू दिस वन. इसमें से आप कोई भी एक लिख सकते हो. ओके, बट ये वाला ज़रूर लिखना है. हाउ डू आई हेल्प माई मदर एट होम. यू हैव टू राइट टू. वन शुड बी दिस वन एंड वन इज दिस वन, द seventh one. Okay, so these two for your homework. You can read these paragraphs and take examples from these or take guidelines from these कि आपको कैसे लिखना है. If you face any problem, you can please ask me. Thank you.